Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the types of financial market. That there is two types of financial market, that is primary market and secondary market. In this lecture, we are going to difference between primary market and secondary market. Primary market, first basis of difference. In the case of primary market, securities are issued at first time. Securities are issued at first time, and in the case of secondary market there is no issuing of security but trading of already issued securities. That means we can buy and sell that already issued securities. But in the case of primary market, only fresh shares are issued. The shares are issued at first time in the case of primary market. Buying and selling, investor can only buy securities. In the case of primary market and in the case of secondary market, both buying and selling can take place. Is it clear? In the case of secondary market, there is liquidity. That means we can easily convert our securities into cash. Specified place, in the case of primary market there is no specified place, but in the case of secondary market there is specified place, that is known as stock exchange market. Price determination, in the case of primary market price is determined by the company, but in the case of secondary market price is determined on the basis of demand and supply. More the demand, more price. Is it clear? And parties, issuing company and buyers are parties in the case of primary market, but in the case of secondary market only investor do trading among themselves. Hope so this lecture is clear to everyone. This topic is clear to everyone. Stock exchange. Stock exchange, firstly, what is the meaning of stock exchange? The economic development of any country depends on the industrial growth of the country. That means the more the industrial growth, जितना ज़्यादा हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, मोर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. जितना ज़्यादा हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा उतना ज़्यादा हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. दैट मीन्स मोर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, more economic development of country. Now question arises, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है? द आंसर इज थ्रू द स्टॉक इंडेक्स, स्टॉक मार्केट इंडेक्स. स्टॉक मार्केट इंडेक्स प्रोवाइड्स ऑल द ट्रेंड इन द शेयर मार्केट. दैट मीन्स actually stock exchange shows the industrial development of country which provides information about the economic development of country. क्योंकि जो हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और स्टॉक एक्सचेंज शोज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री which provide information about economic development. And stock market index refers to that index which exhibits the trend in share market. Actually, what is the meaning of stock exchange? Stock exchange means an organized market where securities issued by a company, government and semi-government organizations are sold and purchased. Now question is, what is the meaning of securities? हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है सिक्योरिटीज़. ये हमारा सिक्योरिटीज़ का क्या मतलब है? हमारा सिक्योरिटीज़ का मतलब किससे होता है? सिक्योरिटीज़ में हमारे क्या क्या आते हैं? शेयर्स आते हैं और डिबेंचर्स आते हैं. सिक्योरिटीज़ में हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स आते हैं. तो जो शेयर्स हमारे क्या होते हैं, हमारे इसमें प्रेफरेंस शेयर भी आते हैं, और प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों तरह के शेयर्स को हम इसमें इंक्लूड करते हैं. तो हमने जो वर्ड यूज़ किया सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? हमारा शेयर्स और डिबेंचर से. नाउ डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू पायल, स्टॉक एक्सचेंज आर मार्केट where securities that have been listed thereon may be bought and sold for the either investment or speculation. अब हमने यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया है वो यूज़ किया है स्पेकुलेशन.
यहाँ पे स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम शेयर मार्केट में मनी को इन्वेस्ट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि शेयर मार्केट में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका प्राइस कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी डाउन हो जाता है, तो इसीलिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, स्पेकुलेशन। ठीक है, तो स्पेकुलेशन भी तो वही होता है कि हमने जो मनी इन्वेस्ट की कभी वो डूब गई, कभी पैसा वो मिल गया। होता है ना, सट्टा लगाते हैं, सट्टे में क्या होता है, कभी कभी हमें प्रॉफिट होता है, कभी कभी क्या होता है, लॉस होता है। तो दैट्स वाई वी यूज द वर्ड स्पेकुलेशन। नाउ फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज की जो फीचर है, इससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताती हूँ। जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज को पूरी तरह से जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, सेबी। सेबी का काम है कि पूरी तरह से स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को कंट्रोल करना। यहाँ पर क्या होता है कि सेबी ही गाइडलाइंस को इशू करता है। सेबी पूरी तरह से जो इंस्ट्रक्शंस है, गाइडलाइंस है, सेबी ही इशू करता है। और सेबी का मेन जो फोकस रहता है वो रहता है कि जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना, उनकी इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना। सेबी जो है वो टाइम टू टाइम उसमें उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, पूरी तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ताकि कोई भी ब्रोकर्स हमारे शेयर होल्डर्स को, हमारे इन्वेस्टर को किसी भी तरह से वो चीट ना करें। दैट मीन्स सेबी पूरी तरह से ओवरऑल कंट्रोल करता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को। ऑब्वियसली बेटा, अगर हम एज ए खुद को इन्वेस्टर देखें, अगर हम कहीं पर मनी इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा मेन फोकस क्या रहता है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो। तो इन्वेस्टर्स को भी तो सिक्योरिटी चाहिए, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमें कंपनी सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करेगी। तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को पूरी तरह से सेबी ही कंट्रोल करता है। जो हमारी सेबी की फुल फॉर्म है, सेबी क्या होता है, हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पूरी तरह से शेयर्स को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, हमारा सेबी का है। उसके बाद है हमारा, अब हम इसकी फीचर्स को डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। अब ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में क्या है कि सेबी जो है, स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। अब जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या है कि हमारी एक मैनेजमेंट कमेटी है। मैनेजमेंट कमेटी जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं ये, और जो भी हमारी कंट्री को जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को जो कंट्रोल करना है, इससे रिलेटेड सब रूल्स रेगुलेशंस हमारे सेबी के पास हैं। और यहाँ पे जो भी वर्क होगा, जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाएगा, सेल परचेज किया जाएगा, वो सारा हमारा उस मैनेजमेंट कमेटी के अंडर किया जाएगा। मैनेजमेंट कमेटी इशू करेगी इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, तो उसी के बेसिस पे सारा का सारा वर्क हमारा मैनेजमेंट कमेटी के अंडर ही किया जाएगा, अंडर द गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट कमेटी। डीलिंग इन सिक्योरिटीज़ इशूड बाय वेरियस कंसर्न। अब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ जो इशू होंगी वही कंपनीज इसमें इशू कर सकती है जो लिस्टेड होंगी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे कंपनीज हमारी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में किस तरह से लिस्टेड हो। अब लिस्टेड होने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको हमें फॉलो करना है, और उसके बाद हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड हो सकते हैं। इज इट क्लियर? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्ट होने के लिए क्राइटेरिया है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री वर्क है, वो फुलफिल करने के बाद वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड हो जाएगी। और एक और चीज़, अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड हो गई है और वो जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के, सेबी के थ्रू जितनी गाइडलाइंस इशू की गई हैं, उन गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करना है। अगर कंपनी नहीं फॉलो करती है तो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट 7 स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह से वर्क कर रहे हैं। डीलिंग ओनली थ्रू ऑथोराइज्ड मेंबर। अब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एक प्रॉपर मार्केट है जहाँ पे हम सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज करते हैं, तो दैट मीन्स ऑब्वियसली जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है जो डीलिंग होगी वो ऑथोराइज्ड मेंबर। अब ऑथोराइज्ड मेंबर भी ये कौन डिसाइड करते हैं? सेबी के थ्रू मेंबर्स डिसाइड किए जाते हैं, ये फुली ऑथोराइज्ड होते हैं। होता क्या है कि शेयर मार्केट में जो ब्रोकर्स हैं, ठीक है ना, अंडर राइटर्स हैं, ये शेयर्स को इशू करते हैं, सिक्योरिटीज़ को। कभी कभी ये हमारे इन्वेस्टर्स को चीट करते हैं, दैट मीन्स उनको सिक्योरिटी का प्राइस कभी कम देना, कभी ज़्यादा देना, तो ये सारी वो चीट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है ऑथोराइज्ड मेंबर्स को अपॉइंट करती है। ऑथोराइज्ड मेंबर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज कर सकते हैं। और अगर ऑथोराइज्ड मेंबर किसी भी तरह से हमारे शेयर होल्डर, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं
उनको चीट करते हैं, किसी भी तरह से उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो ऑथोराइज्ड मेंबर की जो मेंबरशिप है वो हमारी कैंसिल हो जाती है। तो इसलिए ऑथोराइज्ड मेंबर के थ्रू ही इन्वेस्टर्स अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो फुली प्रोटेक्ट रहता है। नेक्स्ट है नेसेसरी टू ओबे द रूल्स एंड बाय लॉज। अब कुछ रूल्स हैं, कुछ बाय लॉज हैं जो हमारे सेबी के थ्रू इशू किए जाते हैं, और हर एक कंपनी को इन रूल्स रेगुलेशंस को, हर एक इन्वेस्टर्स को, हर एक कंपनी को इन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है। अगर वो इन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है तो उनकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, ये सब सेबी इशू करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, और हर कंपनी को इन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो भी इन्वेस्टर्स अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट है, क्योंकि सेबी पूरी तरह से इसको इंस्ट्रक्ट करती है, पूरी तरह से ऑब्जर्व करने का काम सब कुछ सेबी का है। तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट फुली सिक्योर है, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स 24 आवर्स अपनी सिक्योरिटी को सेल परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी है, ऐसा नहीं है कि मनी इन्वेस्ट कर दिए तो उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम जब चाहे तब उसको रिकन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। सो दिस इज द होमवर्क। Which of the following statement is not true with related to primary market? It is known as the old issue market. It facilitates the transfer of investable fund from saver to entrepreneurs. It deals with new securities. It facilitates the transfer of investable fund. अब ये आंसर आपको बिल्कुल पता है कि प्राइमरी मार्केट में क्या ट्रू नहीं है। A company can raise capital through primary market in the form of equity, preference, debenture and all of the above. अभी इसी लेक्चर में मैंने सिक्योरिटीज़ के बारे में बताया है, ये आंसर भी आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। एंड थर्ड इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, एक्सप्लेन इट्स फीचर। वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट डिपेंड्स ऑन द कंसेप्ट दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। तो ये होमवर्क होप सो आप सब लोग करेंगे, और ये लेक्चर ऑलमोस्ट सबको क्लियर है। थैंक यू।